Okay, guys, so we are back on Bollywood Bubble Live. Today we'll be having renowned TV actor Shivin Narang with us, and we'll be talking about lots of things, including his recently released song, which is titled Chadya Fitur. Guys, if you could let me know if my audio quality is all right and if the video is doing fine too. And if you have any questions, please do send it across. I'll be glad to ask the questions to Shivin. We're just waiting for Shivin to join in. He'll be here in any minute. Okay, so there he is. Hi Shivin, how are you doing? Hey, how are you, brother? I'm good. How are you? I'm doing great. Is the audio quality okay? It's perfect. I can hear you. Okay, cool. So welcome to Bollywood Bubble, Shivin. It's a pleasure to have you up with us. Thank you so much. So I'll start with asking right away about your freshly and recently released song, which is titled Chadya Fitur. Chadya Fitur, yes. So it looks like a very romantic song in a very sweet, breezy space. So would you like to tell us more about it? Yes, actually we just shot, you can say, just before the lockdown. We went to Kyrgyzstan and we shot this beautiful song. So first of all, I remember जब मैंने ये गाना सुना था, so I just loved it. मैंने कहा yes, I want to do this song. And then Siddharth, our director, so हमारी बात हुई, we discussed the song and the story. And the story is also very beautiful. It's not like a regular story के गए आजकल जैसे हम music videos में देखते हैं जो basically है. So it was a little different and I thought, okay, why not? Let's give it a try. And then we decided to shoot this song in Kyrgyzstan. And it's also an unexplored destination. ज़्यादा हमने देखा नहीं है कि किर्गिस्तान में कुछ shoot हुए हैं या फिर कुछ है. So, but when we went, then all this happened. There's COVID-19 and all that things were happening. कि काफी बढ़ गया है. तब तक इतना ज़्यादा risk नहीं था. Then we went and location बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, हमने shoot किया. And trust me, it was fun. बहुत कम time था हमारे पास because I was shooting for one more show, one of my fiction show here in India. So time बहुत कम था, but we really enjoyed it and the kind of response over there. Indians बहुत सारे थे, बहुत सारे medical students हैं किर्गिस्तान में जो हमें वहाँ मिले, they supported us. कई तो मेरे shows बहुत सारे देख चुके थे लोग, तो वो सब मिलने आए. So ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, ऐसा लग रहा था सब अपने इंडियंस हैं. And it was a great experience. And song तो आपने सुना ही है, song बहुत अच्छा है. So it was fun. It was a fun team. ऐसा नहीं था कि बहुत pressure था shoot का. Me, Siddharth, Vartika, Niyati, Times team and everyone was great. Okay. So any memorable event or any special memory from the shoot that you have? I remember जब हम because of my dates तो time बहुत कम था हमारे पास ये गाना shoot करने का and because of this COVID also थोड़ा tension बढ़ रहा था तो था कि जल्दी से जल्दी shoot करो और यहाँ से निकलो. तो I remember एक sequence है छोटा सा dream sequence जिसमें मैंने black jacket पहनी है. Vartika is also wearing black and it's a dream sequence. We are dancing and all. मुझे याद है हम रात को कुछ 2-2:30 बजे शूट कर रहे थे किर्गिस्तान में एंड ट्रस्ट मी इतनी ठंड थी. वर्तिका तो ऐसे जम गई थी. शी कांट मूव. मतलब उसके हाथ ठंडे हो गए. मुझे बहुत ठंड लग रही थी. इनफैक्ट हमने जैकेट्स पहनी थी, अंदर भी बहुत कुछ पहना था बिकॉज तो वो भूल नहीं सकते हमने किस कंडीशन में वहां पे शूट किया है. ओके एंड ग्रेट. आई एम हैप्पी विद द रिस्पांस. पीपल आर लविंग द सॉन्ग. सबको बहुत अच्छा लग रहा है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम एक सॉफ्ट पंजाबी सूफी काइंड ऑफ फील एक सॉन्ग आया. So I'm very happy that people are liking it. Yeah, and Shahid Malik spells magic with his voice, doesn't he? Obviously जब मैंने गाना सुना ही था and मुझे जब वर्जन मिला and शाहिद ने गाया था तो obviously उनके सारे ही गाने इतने अच्छे हैं. My favorite is तो एक कुड़ी. तो जैसे ही इस गाने में मैंने देखा तो मैंने लगा wow, I want to do this song. This song is great. तो मुझे सुनते ही कोई चीज होती है ना आपको पहले सेकंड में ही सुनते अच्छी लग जाती है. So that was it hits your heart instantly. It hits your heart and obviously if you watch this song right now also and what all I'm reading the comments and everything, जितने भी fans हैं या जितने भी audience है जो देख रही है सबको बहुत अच्छा लग रहा है गाना. तो I'm sure वो सही connect हुआ है लोगों से. Okay. So you spoke about the lockdown being imposed right after the shooting took place. Right. So I just want to know if it was the things were a little hard or difficult to get back to India while the lockdown was imposed and you were outside of India. Yes, actually जब हम यहाँ से गए तो I have posted a picture also. I was wearing a mask and all. तो उस टाइम उतना बड़ा नहीं हुआ था because it was just limited to China कि चाइना में ऐसा है.
बट वी वर गोइंग टू किर्गिस्तान, जहाँ पे कोई केस नहीं था, लेकिन इट्स वेरी नियर टू चाइना, किर्गिस्तान। तो एक थोड़ा सा डाउट था मन में कि थिंग्स ठीक हैं नहीं हैं, तब तक 3 4 5 केस आए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मार्च। फिर जब यहाँ, और काफी सारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कजाकिस्तान, कजाकिस्तान टू किर्गिस्तान, सो इट वाज नॉट इजी टू रीच ओवर देयर। तो जब हम वहाँ गए तो काफी मुश्किल था। एंड द फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मैं फ्लाइट में था, कई लोग आए ऐसे प्रॉपर सूट पहना हुआ, एंड दे वर चेकिंग योर टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इन द फ्लाइट ओनली बिफोर लैंडिंग। तो एक स्केरी माहौल कह सकते हैं आप था उस टाइम के हिसाब से। अब तो सब अवेयर हो चुके हैं, सबको पता है कि क्या क्या करना है, बट उस टाइम इतना नहीं पता था। एंड उस टाइम मास्क पहनना भी ऐसा लग रहा था कि क्यों पहनना पड़ रहा है मास्क, व्हाट इज दिस एंड दैट। बट काफी स्केरी था। फिर हम वापस आए, कई दिन, थोड़े से दिन क्वारंटाइन रहे, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, टच वुड। तब तक सब कुछ ठीक था, बट उसके बाद काफी सिचुएशंस एंड काफी केसेस आने लगे, सो दैट बिकेम स्केरी। Okay, okay. And talking about lockdown, it has brought in a major change in lifestyles of people all across the world. Right. People now have become more self-reliant. Right. They've been learning new things, over these period of months. Right. So, has anything like that happened to you? Have you acquired any new skill or practiced any new hobby? To be honest, I was helping out my mom at जो भी घर की चीजें होती हैं उन चीजों में। That's a wonderful thing to do. Yeah, actually it is a wonderful thing, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, हम सबके घर में जो भी हेल्प थी, वो कोई आ नहीं सकता, कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, कोई आ जा नहीं सकता, तो सारा प्रेशर ज्यादातर घर पे मॉम पे आ गया है, क्योंकि कुकिंग एंड ऑल स्किल्स जो उनके पास हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। तो तो यही ट्राई होता है कि जितनी आप हेल्प कर सको हेल्प कर लो। बीच में मुझे थोड़ी इंजरी हो गई थी, तो उस वजह से मैं नहीं हेल्प कर पा रहा था, बट टचवुड अभी मेरा 2 दिन पहले ही प्लास्टर उतरा है, तो आई एम हैप्पी नाउ। एंड मे बी थोड़े आगे आने वाले टाइम में मैं दोबारा से कुछ घर की हेल्प कर सकूँ। Okay. And, the other aspect of lockdown is that, it has taken a tremendous toll on mental health of people. Yes. A majority of people, there are sections of the society that have been, struggling with, keeping up with the lockdown and the, the overall media hysteria around the disease and all. Right. And unfortunately, from the industry also, few people have, took a harsh step and they have committed suicide, following the mental stress and all. Right. So what would you as an individual like to, address this problem as, and what would you like to tell people who are, undergoing the mental stress as of now? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। मैं किसी को एडवाइस दूं या आप किसी को एडवाइस दो, हम सब इससे पहली बार ही डील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इट नेवर हैपेंड, मुझे तो याद नहीं है मेरे लाइफ टाइम में ऐसा कभी भी कुछ हुआ हो, या ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई हो। हमें 1-2 दिन से ज्यादा घर से बाहर, जब 2 दिन बीमार भी हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कब घर से बाहर जाएंगे। सो नाउ इट्स मोर देन 2 months। कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इस चीज का, बट हम यही है, कहते हैं ना कि शेयरिंग से काफी चीजें ठीक हो जाती हैं। जो इफ यू फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग, और यू जस्ट फीलिंग लो, कई बार आप अपने फ्रेंड से बात कर लो या किसी एक ऐसे इंसान से बात कर लो जिससे आप कनेक्ट होते हो, तो यू फील गुड। सो आई गेस शेयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप वीडियो कॉल करते हो, कुछ करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। हम आजकल देख रहे हैं पीपल आर बिकमिंग सो मच प्रोडक्टिव, घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पे कुछ सीख रहे हैं, तो कोई कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट गुड फॉर देयर ओन हेल्थ ओनली, वो कुछ किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं। एंड सारे डेज आते हैं फॉर मी ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आप जितने दिन है सब में हैप्पी एंड ब्राइट ही रहते हैं। कई बार आपको बोरिंग भी लगता है। समटाइम्स यू जस्ट फील गोइंग आउट और मीटिंग योर फ्रेंड्स और just going out to eat or something, but right now जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, survival is more important। तो right now it's more important कि आप घर पे रहें, और घर पे रह के जो चीजें कर सकते हैं वो करें। थोड़ा बहुत वॉक करना जरूरी है हेल्थ के लिए, वॉक कर लें अगर कुछ नहीं कर सकते तो, या फिर सबका अपना है। मैं किसी को कोई एक चीज बता के ऐसा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। Okay. And what would be that one thing that you have been missing, during this lockdown? Is it some food, is some favorite delicacy, or actually anything in art form? I'm really missing meeting my friends. I guess that's the thing। क्योंकि बाकी सब चीज आप कर सकते हो, खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, कई और चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, बट एक 1-to-1 मिलना होता है,
शूट जैसे हमारे हम्म, ऑब्वियसली हमें तो बहुत आदत है कि रोज शूट पे जाने की, रोज मिलने की, रोज कुछ नया कुछ करने की, एंड ड्यूरिंग शूट लाइफ इज सो इवेंटफुल कि आपको हम्म, आप एक जो नॉर्मल रोज के आपके स्ट्रेस हैं या कुछ चीजें वो भी भूल जाते हो, इतना ज्यादा आप बिजी होते हो अपने हम्म, आप में और अपनी शूट पे. सो आफ्टर दिस आई गेस आई एम मिसिंग दैट द वन टू वन, एक आपकी कम्युनिकेशन, मिलना, घूमना, दैट इज द वन थिंग आई एम मिसिंग द हम्म. मोस्ट. Okay, okay. And in terms of shoots, what is that one aspect that you've been missing apart from the social interactions? But obviously being over there playing your character, because आपको आदत होती है, आप रोज जाते हो, आपकी एक लाइफ बन जाती है. इट्स लाइक अ पैरेलल लाइफ. अगर Mhm, आपके घर में एक लाइफ है, आपकी शूट में एक लाइफ होती है. mhm, एंड व्हेन यू आर शूटिंग, व्हेन एज एन एक्टर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो उससे बहुत ज्यादा. वो भी एक आपकी लाइफ mhm, का हिस्सा है. दैट इज ऑल्सो योर लाइफ विच यू आर मिसिंग. mhm, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ शो, तो आपके जो बाकी जितने लोग हैं, जितने एक्टर्स हैं या जितनी यूनिट है, वो आपकी फ्रेंड कम फैमिली बन जाती है. तो आप उनको बहुत ज्यादा मिस करते हो. mhm. Okay, So I guess okay. that's the thing. And okay, okay. And when it comes to the craft of acting, Ji. time is a very important factor. Right, right, So the more you stay close to your character in terms of time, right, the more it helps you to analyze and explore the possibilities or the dimensions of that character. right, But on right, the flip right, side, in a situation like a lockdown, right, when you're away from your character for so much longer period of time, right, right, right. does it kind of take you away from the nuances of the character, or does it help you explore, psychologically more about the character? Look, it has both the impacts. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चीज होती है. When you like, मैं उस दिन एक दिन बैठा हुआ था and I was thinking about like I was reading some कुछ old अपनी एक script पढ़ रहा था, and I was thinking अरे इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था. I guess with time you evolve. Every day you are evolving. Mhm. आज शायद मैंने आपसे Yeah. बात करी है, शायद आपसे बात करके मैं कुछ सीखा हूँगा, या किसी और से आप जब अकेले होते हो अपने आप बहुत सारी चीजें सीखते हो. तो कई बार ऐसा भी होता है Mhm. कि द ब्रेक इज वेरी गुड फॉर यू एज एन एक्टर. बहुत आप सीखते हो. और बट हाँ, आप आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है एक बार आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, आप उस प्रोसेस में बहुत जल्दी आ जाते हो. सो ये जो Okay. टाइम है, इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो यस, यू हैव लॉट ऑफ टाइम इफ यू वांट. और किसी भी क्राफ्ट पे आप अपने काम करते हो, या एज एन एक्टर एक आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ यू आप उस पे काम करते हो, या कुछ अच्छा पढ़ते हो, या लोगों से बात करते हो, या सोशल मीडिया पे आजकल हम इतना सब कुछ देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी देखते हो तो आई एम श्योर आपकी स्किल्स Mhm. बढ़ेंगी ही, कम नहीं हो सकती. Mhm. Okay, okay. And now that the lockdown is slowly being lifted in Right, phases, right, right, we are right, moving towards the unlock phase. right, But in a fairly ideal world, right, where cases have been spiking up, right. how do you view this? The unlock process, wherein the cases are spiking up and we have to get back to our daily lives, daily routines, because we have like no choice since the economy is Right, suffering so much. right, right, right. So how do you feel we can strike a balance between staying safe and going on ahead with our lifestyle? Look, मुझे भी उतना ही पता है जितना आप सबको पता है. जैसे आप न्यूज़ देखते हो वैसे मैं देखता हूँ. बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि जैसे स्टार्ट तो हमें करना ही पड़ेगा. वेदर Mhm, राइट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट शूट, ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें mhm, स्टार्ट तो करना ही होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो. क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हम देख रहे हैं कितने लोग सफर कर रहे हैं. बट यही है कि अब हमें इसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा. सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को, अपने आप को सैनिटाइज रखें. दिस इज आवर mhm, लाइफस्टाइल, दिस इज द नेक्स्ट थिंग. हमें यही फॉलो करना है जब mhm, तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक ये सब कुछ पूरा ठीक नहीं हो जाता है. तो वी हैव टू मेक इट mhm, अ लाइफस्टाइल. और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. बिकॉज लाइफ तो चलेगी. mhm, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर हम कुछ बाकी के काम नहीं चल रहे हैं, या फिर हम बाकी अपना सब कुछ कुछ खरीद नहीं रहे हैं या पे नहीं कर रहे हैं. वो सब कुछ तो चल रहा है. तो ऑब्वियसली उसके साथ लाइफ भी चलेगी. एंड अगर लाइफ चलेगी तो इफ यू वांट टू keep it safe for yourself and your loved ones, you have to follow it and make it a lifestyle. Okay, okay, cool. So we'll take some fan questions for now. Yes, सबसे पहले So सॉरी, one मैं of the सबको questions. सबसे बात करना भूल गया. थैंक यू सो मच. आप सब यहाँ पे आए हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में, एंड थैंक यू सो मच. यू आर लविंग द सॉन्ग, एंड दैट्स इट. So one question that has been frequently popping up Right. is about Behad 2.
People Right. are like really kicked about to know about the updates on the show. So would you Right. like to tell us more about the second season of the show? सेकंड सीजन अभी के लिए न्यूज में भी आया है, आप सबने भी देखा होगा. सेकंड सीजन इज फॉर नाउ जो सिचुएशन है अभी हम 2-2.5 महीने से शूट नहीं कर रहे हैं एंड it's a probability that we'll not might come back soon because it's a limited show. अभी सब कुछ रुक गया है एंड ऐसा ही नहीं है सिर्फ हमारे शो की बात है, पूरी इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री, पूरा मीडिया रुका हुआ है. सो it's a dicey situation, but for the fans and the viewers of Behad 2, as it's such a popular show and it's such a honest show. जो भी उसमें हमने कंटेंट दिखाया है टेलीविजन में, हर इंसान उसको लाइक करता है या फिर अप्रिशिएट करता है. एंड इवन वी डोंट वांट कि अभी वो शो नहीं आ रहा, इवन वी आर फीलिंग सैड, बट दैट इज द ट्रुथ. अभी दिस इज द सिनेरियो कि अभी क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में. Okay, and reports also suggest that you would be playing the main lead in Nagin 5. So would you like to tell us more about it? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, फिर जो भी अपडेट होगी वो मैं सबको दूंगा. अभी चढ़िया फितूर आया है, बस उसी की अपडेट है. प्लीज वॉच दैट. Okay, cool. Yeah. And Urmika, one of the fans, Urmika, she wants to know which is your favorite character and which one is the closest to your heart that you relate the most to. Whatever character I have played, Yeah. मेरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, ये ना वही बात हो जाती है. मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसा लगता है सुनने में कि ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, ये तो बोलेंगे कि हाँ सभी क्लोज हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, बट सबके अपने पार्ट्स हैं और सब एक अलग लाइफ के स्टेज में आए थे. जब मैंने फर्स्ट शो किया था उसमें आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड युवराज. इट वाज वेरी पॉपुलर. उस टाइम उसका एक अलग एक क्रेज था, एक अलग अटैचमेंट थी, और मैंने अपनी तरफ से सब में 100% दिया. ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें मैंने नहीं दिया है. अभी लास्ट जो मैं प्ले कर रहा था रुद्र रॉय इन बेहद, दैट वाज आल्सो वेरी क्लोज टू यू बिकॉज यू लिव दैट लाइफ. ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक दिन कहीं गए. इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि हाँ वहां ज्यादा मजा आया था, यहाँ नहीं आया. इफ यू आर लिविंग अ लाइफ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उससे एक अलग अटैचमेंट हो जाती है. और मुझे तो सभी अगर आप मेरे से पूछें, वैसे भी आई एम वेरी चूजी व्हेन इट्स पिकिंग टू what kind of project I have to pick, but everything is very special. You can say कि कोई भी ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि यार वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा नहीं था. I loved playing each and every character, and every character is very close to me. Okay. And if I have to ask about your, the process of your craft, how you approach your Right. characters. Right. So is it like instantly you switch on into the character and then switch off once the camera rolls नहीं, off, or you take your time to? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है आफ्टर अ टाइम व्हेन यू आर इनटू द कैरेक्टर एंड आपको थोड़ा सा टाइम हो चुका होता है, यू आर इनटू इट. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू शो और फॉर अ न्यू कैरेक्टर, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है. उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप धीरे धीरे भी सीखते हो. कई चीजें आप डेवलप करते हो चीजें धीरे धीरे. सो इट्स नॉट दैट कि आज आप मुझे बोलेंगे ये कर लो तो ऐसे हो गया, ऐसे कर लो तो ऐसे हो गया. ऐसे किसी की मिमिक्री हो सकती है, बट इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू अ कैरेक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ता है और सबका अलग प्रोसेस होता है. जैसे हम देखते हैं मेथड एक्टिंग आप बात करते हैं, या फिर कोई स्विच ऑन ऑफ होता है, या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस से कुछ इमोट करने की कोशिश करता है. सबका प्रोसेस अलग है. कुछ भी सही और गलत नहीं कह सकते एक्टिंग में. बट द थिंग इज दैट कि इजी नहीं होता है. ऐसा कोई अगर बोले ना कि अभी मुझे आप खुद दे दो मैं कैरेक्टर पे चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है. टाइम लगता है आपकी. जैसे हम 2 महीने हो गए, हमें आदत हो गई लॉकडाउन की, तो हम लॉकडाउन के कैरेक्टर में चल रहे हैं. हमें पता है कि लॉकडाउन में क्या करना है, क्या नहीं करना. सबकॉन्शियस में आ गया है कि हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, नीचे जाना है, ऐसा करना है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप सब हमारी लैंग्वेज में कितने सारे ऐसे वर्ड्स आ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, दिस एंड दैट. तो ये सारी चीजें टाइम लगता है आते आते. एंड ये आपका प्रोसेस होता है कि आपको उसको कितने अच्छे से या कितनी स्मूथली आपको एंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, जो राइटर ने स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे अपने में उसको एब्जॉर्ब करते हो. Okay. And do all your characters stay with you till the end of time, or like you flush it out once the project is over? नहीं, इट स्टेज विद यू यार. मतलब ये
आपको अगर उसके बाद भी कोई आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है, यू हैव टू स्विच टू अ कैरेक्टर एंड मैं तो बड़ा सेंटी हो जाता हूँ जब ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा होता है ना, वाइंड अप हो रहा होता है, तो हम्म, बिकॉज आई गेस इट्स विद ऑल द एक्टर्स, ऐसा नहीं है कि खाली मैं हो जाता हूँ, सबके साथ ही होता है, हम्म, क्योंकि आई एम श्योर जब जो जैसे आप भी जो चीज करते हैं कुछ वो आप में एक चीज छोड़ जाती है, सेंस ऑफ हु यू आर। हम्म, तो हम्म, जब वो चीज नहीं करते, कुछ और चीज कर रहे होते तो थोड़ा सा एक उस टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा ऐसे पिंच होता है कि यार ओ नो, ये शायद टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं हम्म, आएगा, बट आई गेस दैट्स व्हाट लाइफ इज। yeah, okay. And when you make a transition from one character to another, you as Shivin, as a person, you are राइट viewing from a third eye, राइट both the राइट characters. राइट राइट So, what new perspective does it bring along, when you get into those characters? I mean, getting back into the characters while making a transition. देयर लॉट ऑफ थिंग्स, कई बार हमारी एक सोच का एक पोटेंशियल है कि हम इतना सोच सकते हैं। व्हेन यू इनटू द Mm-hmm. कैरेक्टर, यू आर इन अ प्रोजेक्ट, आपके साथ डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, और लोग होते हैं और एक्टर्स होते हैं, उनसे बात करके, स्क्रिप्ट पढ़ के, उसके बारे में रिसर्च करके आप काफी कुछ सीखते हैं। एंड Mm-hmm. व्हेन यू आर प्लेइंग इट और यू आर परफॉर्मिंग, तो आपका खुद का एक व्यू होता है, आपके बाकी लोगों का एक व्यू होता है, और जो सबसे बड़ी Mm-hmm. चीज होती है वो कैमरा। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, कैमरा में सब समझ आ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या फेक लग रहा है, क्या ओवर लग रहा है। और अगर आपको Mm-hmm. थोड़ी सी अवेयरनेस है और उसकी जजमेंट है, तो आप इंटेलिजेंटली समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं। एंड यस, यू नीड सम Mm-hmm. ऑनेस्ट पीपल विद यू के जो आपको सच बोल सके, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। लाइक हो सकता है कभी मेरी भी कोई अच्छी चीज नहीं होती तो मेरे फ्रेंड्स लाइक सीधा फोन करके बोलते हैं, अरे ये अच्छा नहीं लगा होता, ये दैट वाज नॉट गुड। इवन फैंस, आई रियली अप्रिशिएट, कभी फैंस भी या फिर जितनी ऑडियंस है हमारी, वो ऑब्वियसली दे मैसेज और दे राइट कि नहीं शिवन, दैट वाज नॉट गुड, दिस वाज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान की वजह से आप Mm-hmm. चेंज कर सकते हैं, बट एक आप अगर अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो नोटिस में जरूर ले सकते Hmm. Okay. Okay. Again, talking about the craft, a script writer or a screenwriter gives you, certain lines or a situation or हैं। the राइट premise, राइट but making it come alive in front of the camera, राइट setting up the entire universe, the राइट burden majorly lies on the shoulders of an actor. राइट Pankaj Tripathi sir, he also said that an actor is a co-author to the script along with the script writer or the Yes, yes, screenwriter. yes, 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 yes. So, what inputs you feel that an actor majorly brings into the script, from his craft standpoint, acting standpoint? देखिए क्या होता है कि जब कोई लिखता है तो एक इंस्पिरेशन से लिखता है कि ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा। लिखने में ऑब्वियसली आई सैल्यूट टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स, सबका अपना एक, वो शायद उतनी इमेजिनेशन से लिखेंगे ही नहीं तो कोई एक्टर वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग, इट्स नॉट कि आप कोई काम कर रहे हो, यू सेल्फ इन इट, आपकी होल बॉडी, आपकी हर एक चीज, दैट बिकम्स द कैरेक्टर। सो इट्स नॉट इजी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक्टिंग का काम कोई बहुत आसान है, या फिर हाँ एक्टर के लिए तो क्या यही जो लाइन्स है ये बोलने ही है। इफ यू रियली गेट इनटू द कैरेक्टर, आपकी हर एक चीज वो कैरेक्टर बन जाती है, चाहे आप जैसे बोल रहे हैं, चाहे आप जैसे देख रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर कई बार खाली लुक्स पे ही होता है क्या, तो ऐसा नहीं होता है, सबका कॉम्बिनेशन होता है, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन, जो जैसे हम परसीव करते हैं, अगर कोई जैसे किसी भी कैरेक्टर में किसी को, तो it's not just one thing which we say, there are a lot of things which Yeah. it's like, कहते हैं ना कि it's your skin, your bones, your blood, सब कुछ मिलके एक कैरेक्टर बनता है। Okay. Okay. So the craft of acting, it majorly derives its energy from the mindfulness. Right, If right. you get into a certain emotion, you need that mental prowess to get into a certain situation or an emotion, or to Right. tap the certain possibilities of a character, Right, right. to get into certain darker zones if the script demands. Sure. So how do you keep the sanity in check, when you are dwelling deep into certain characters, that are far Right. from reality, for example, let's say. Right. So how do you bounce back to the reality? Look, awareness is one thing. Awareness हमेशा ही होती है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अपने कैरेक्टर में इतना खो गया था, मुझे पता ही नहीं चला ये करना, ये करना। अगर इतना ही खो जाओगे तब तो आप डायलॉग भी नहीं बोल पाओगे जो लिखा है। ट्रू।
So there is always a sense of awareness which what we are doing. हो सकता है कि उसमें 19-20 कहीं बह जाएं या कुछ नेचुरल कुछ और निकल आए, कुछ बोलना कुछ और चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आप कितने भी कैरेक्टर में हो, द सेंस ऑफ अवेयरनेस इज ऑलवेज देयर. लाइक अभी शायद हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक सेंस पे बात कर रहे हैं, एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चाहे मैं कितना भी इमोशनल हो जाऊं, बताने लग जाऊं, बट वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग. So there is always a sense of awareness in whatever you're doing. Even if you are crossing a road, there is a sense of awareness. अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट होता है तो you know how things happen. मुझे भी शायद अभी चोट लगी तो शायद sense of awareness मेरी उतनी नहीं चल रही होगी. So I guess when you are an actor, you have to be aware about each and everything, what you are doing, कैसे आप हो, कैसे बैठे हो, कैसे कर रहे हो, and when जब आप सबकॉन्शियसली भी चीजें अपने अंदर ले रहे होते हो, तो आपको हर एक चीज में अवेयर तो रहना ही पड़ता है कि आप सही चीज है कि नहीं है. विल इट गो विद द कैरेक्टर और इट विल नॉट गो विद द कैरेक्टर, एंड समटाइम्स पीपल विल आल्सो हेल्प यू. सो आई गेस अवेयरनेस इज द की. व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू आर कॉन्शियस इनफ फॉर एवरीथिंग, तभी आप में सबकॉन्शियसली वो डेवलप होती हैं चीजें. Okay. And since you're talking about awareness, do you make it a habit to interact with on a daily basis with day-to-day people that come across to you? It can be your team or normal people, so as to enhance more to tap more emotions and to develop 100%. क्योंकि आपको इतना ही आता है. अगर आप इतना ही आता है, आप जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, you don't know people, you don't know how they react. कहते हैं ना, एक्टिंग इज ओनली अबाउट रिएक्शंस. इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग. डायलॉग तो आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा, कोई भी बोल देगा. इट्स ऑलवेज गुड हाउ वेल यू कैन रिएक्ट टू द थिंग्स बीइंग इन द कैरेक्टर. सो दैट्स व्हाट एक्टिंग इज. तो अगर आप लोगों से मिलोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग होते कैसे हैं. कई लोग ऐसे होते हैं, कई एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बात ज्यादा नहीं करते लेकिन एब्जॉर्ब सब कुछ करते हैं. सो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप में लोगों से ही लोगे. आप कहाँ से लोगे? और मतलब एक्टिंग इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस. हाँ, एब्जॉर्बिंग. अगर आप वही नहीं करोगे तो आप कहाँ से लाओगे? लाइक आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा आपके पास कुछ भी देने के लिए? So the reason I asked that question is, मुझे सबसे पहले बताओ, आप भी एक्टर हो क्या? मुझे क्योंकि इतना No, I'm not an actor. I'm a filmmaker, but I'm not an actor. Yeah, but you are involved in this creative field, obviously. तो क्योंकि इतना सेंस और इतना सेंस ऑफ उस बात को सोच के उसको शब्दों में बयान करना भी, it's like it's not for everyone. इतना कोई सोच भी नहीं पाता. That's why I asked. Okay. So the reason I asked this question is, if you interact with people on a day-to-day basis, because in Chadaya Fitur, you have been in that romantic breezy space, that innocent, sweet charm of love. So did you tap into that territory of in your memory, to bring alive that character, like a first love, or when in Chadaya Fitur, I'm playing a person who's at backstage. एंड जो भी लोग बैक स्टेज पे होते हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स एवरीथिंग. एक्टर्स का फिर भी एक होता है कि अपने काम में ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करते हो या अपने क्राफ्ट को लेकर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो. व्हेन यू आर एट बैक स्टेज, यू आर इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग. तो चढ़िया फितूर इज लाइक अ लव स्टोरी अबाउट अ पर्सन जो बैक स्टेज पे है, जो ड्रम भी बजा रहा है, जो साफ भी कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, जो म्यूजिशियन भी है, जो ध्यान भी रख रहा है. एंड वो साथ साथ में ही इज फॉलोइंग फॉर दिस गर्ल, बट ही इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट गाय. वो जो उसका स्वीट एक इमोशन निकल के आ रहा है, एक कहीं ना कहीं, एंड ये होता भी है, सबके साथ ही होता है. इट्स नॉट इजी के सीधा जाके किसी को कुछ भी बोल दो. इट्स ऑलवेज, इट नीड्स लॉट ऑफ गट्स. एंड सो दिस वीडियो एक बहुत अच्छी बात लगी कि सब मुझे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा कि जो हीरोइन है वर्तिका पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर, वो आके नीज पे बैठती. नहीं तो जनरली हम देखते हैं ना, लड़का आया नीज पे बैठ गया, हाथ खोल दिए, सब एक स्टीरियोटाइप जैसा बना हुआ है. सो वो एक ब्रेक हुआ. एक लोगों ने फ्रेश स्टोरी देखी, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज बैक स्टेज पे क्या चल रहा है उसके लिए लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि एक तो होता है ऑन स्क्रीन और एक बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीज है, या जैसे बिटवीन द शॉट्स क्या हो रहा है. सो एक उस बारे में है. तो काफी अच्छा, एक फील बहुत अच्छा था इस सॉन्ग का. और हमने जब स्टोरी भी बनाई थी तो एक छोटी सी सिंपल स्टोरी हमें कहनी थी एक बहुत अच्छे कम टाइम में, एंड आई गेस वो क्लिक हुआ लोगों से. और एक पंजाबी फ्लेवर है, सो वी हैव केप्ट द कैरेक्टर्स, द लुक, द फील अकॉर्डिंग टू दैट.
The story is about Ranja and Majnu, sorry, Heer and Ranja, and मैंने जैसे एक स्टेटस लिखा था, एक थी हीर, एक था रांझा और एक था डफली वाला. सो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एक टिपिकल हीर और रांझा की कहानी नहीं है, एक डिफरेंट कहानी है. सो वी आर हैप्पी कि लोगों को पसंद आया सब कुछ. Okay, okay, and this lockdown. If I talk about this particular lockdown period, it has taken away unfortunately, a lot of legends away from us. Right from Mr. Rishi Kapoor to Irfan Saab, Right. and recently the renowned and the eminent filmmaker Basu Chatterjee. Right. So, would you like to say anything on this? कुछ नहीं कह सकते. कहते हैं ना, भगवान ने हमें हर एक चीज दे दी, एक ये चीज अपने पास रखी है. सो वी जस्ट कैन रिमेम्बर देम फॉर देयर लाइक गुड डीड्स, एंड जो वो हमें दे के गए हैं, चाहे वो इरफान सर हो, ऋषि सर हो, चैटर्जी सर हो, जो भी वो हमें दे के गए हैं, वो इतनी बड़ी चीज है. वी कैन जस्ट रिमेम्बर देम बाय गिविंग आवर रिस्पेक्ट टू देम. दैट्स इट. Okay. And as an artist, what kind of stories you generally prefer or you have a knack towards? Because certain artists, like if I talk about let's say John Elia, they have a knack towards simplicity. They find solace in simplicity, and then they find that pleasure in telling this story in a very simplistic way. On the other hand, a filmmaker or an artist like Christopher Nolan, like he messes up with the timeline, and that's his forte, telling complex stories. Even if it's a simple story at heart, he tells it in a way that it comes across as a very complex bundle of emotions. So for you as Shivin Narang, what you prefer generally in terms of storytelling? It has it to be a mix of both, or it has to be simplistic or complex? मैं ये कहना चाहूंगा, फॉर एन एक्टर ये चीजें आप प्रेफर नहीं कर सकते हो. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी कर लो, बट व्हेन यू आर एन एक्टर यू कांट डू दैट. इफ यू टॉक अबाउट लियोनार्डो, तो उन्होंने इंसेप्शन भी किए है, टाइटैनिक भी की है, ठीक है, रेवेनेंट भी की है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी की है. तो आप देख सकते हैं उसका वेरिएशन क्या है. यू कैन नेवर स्टिक टू कि यार नहीं यार ये मैं नहीं करी. यार कितनी लव स्टोरीज भी करी हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि यार एज एन एक्टर आप अगर ऐसे एक फोटे बना लो कि यार मैं तो यही करूंगा, मुझे यही आता है, then you're not an actor. आप एक बिजनेस में, एक इमेज में अपने आप को ढाल चुके हो, बस मैं ये कर सकता हूँ. So for me, there is no image, there is nothing. I do what I like, whether it's a very simple love story, whether it's a short film or a music video or a show or a film or something like that. And if you look at my career graph also, I have done all the things which are out of the box. ऐसा नहीं है कि स्टिक हो गया कि अगर टेलीविजन कर रहा हूँ तो टेलीविजन ही करूंगा, या फिर म्यूजिक वीडियोस ही करूंगा, या इसी टाइप की करूंगा. It's all very different. So I don't think so as an actor. हाँ, as a person हो सकता है. जैसे मेरे कुछ चॉइस हैं कि यार मुझे एक्शन फिल्म ज्यादा अच्छी लगती हैं, या फिर recently I was watching this mind-riddling series called Dark, so I like that on Netflix. तो पर्सनली मेरी चॉइसेस हो सकती हैं, वो भी टाइम के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि पहले हम कुछ और देखते थे. लाइक जैसे जोकर में था ना, we used to like heroes first, now we are fan of villains. So आपके टेस्ट बदल सकते हैं टाइम के साथ, but as an actor I don't think so. You have to be flexible with everything, with whatever you do. Okay. And filmmaking or the business or the craft of web shows or television content, it's a collaborative art form, wherein different people, they come with different skill sets. Someone who is really good with handling the camera or the scenic beauties, capturing the scenic beauties. They all come together and invest their energies and time to make out something which is spectacular when it comes out on our screens. 100%, yes. So in the past few months, the things have changed largely, with lockdown opening up, and unlock coming in place. How do you view the future of filmmaking and content making? Because since I said it's a collaborative art form, it's bound to get crowded, with people coming from different backgrounds and helping each other out, to tell a story. So how you view the future of filmmaking or the content production in times to come? देखिए, दो चीजें हैं. राइट नाउ इफ यू सी देयर इज लॉकडाउन गोइंग ऑन, हम बहुत सारे एक्टर्स का देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, बड़ी सारी फोटोज खींच रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम से हम ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि उनकी वीडियोस या उनकी फोटोज वैसी है ही नहीं जैसे पहले आती थी. राइट? बिकॉज राइट नाउ दे आर डूइंग इट. मे बी सम प्रोफेशनल यूज्ड टू डू इट फॉर देम.
आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि हो सकता है कि कोई एक्टर जो बहुत अच्छी फोटोज डालता हो या जो सोशल मीडिया में बहुत अच्छी वीडियोस डालता हो या जनरली भी वो कंटेंट उतना अच्छा है, उस क्वालिटी से नहीं निकल के आ पा रहा, बिकॉज आप हर एक चीज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप घर पे हो, वो भी एक रीजन है, बट आप वो उतने उस लेवल पे आप हर एक चीज नहीं आ सकती आपको। यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। और दूसरी अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखी जाए चीज, तो ये है कि आप लर्न कर रहे हो जो चीजें ना आपने कभी सोची नहीं थी, यू आर लर्निंग दैट। मे बी अगर मैंने कभी डायरेक्शन ट्राई नहीं किया है या फिर कभी कैमरा ट्राई नहीं किया है, अभी शायद मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसको ट्राई करने का, एंड यू नेवर नो कि आपकी कौन सी ऐसी हिडन स्किल है जो आपको भी नहीं पता, जिसमें आप अच्छे हो सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। सो देयर आर बोथ वेज टू सी, लेफ्ट एंड राइट, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, okay. And lastly, I would like to know what all upcoming projects you would be a part of. And what projects we could see after we could see you after the lockdown once this gets over. Look, right now making any commitment, I don't think so. It's a true thing to do. मतलब कुछ भी ऐसी commitment मैं करूँ या कई, obviously there were a lot of things going on, but due to the lockdown, there are obviously सबकी डेट, सबका जो पूरा सिनेरियो है मीडिया का एंड फिल्म मेकिंग का, चाहे शोज का, अभी सब थोड़ा सा शेक हो चुका है। सो आई गेस, एंड फॉर मी आल्सो आई वाज सफरिंग विद दिस, तो बीच में कुछ क्वारंटाइन एंड लॉकडाउन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, आई कुडंट डू इट, I couldn't able to shoot it because of my hand. So right now I'm on a break, and let's see after these things सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद we'll make an announcement. But yes, खतरों के खिलाड़ी, which I was doing, it's coming soon, end of this month probably, it's coming. So ये है कि सबसे अच्छा अब ये है कि अब ऑडियंस दोबारा से खतरों के खिलाड़ी कंटिन्यू देख सकती है. Okay, cool. So on that note, thank you so much for talking to us, Shivan. Thank you so much. I really enjoyed it. Yeah, thanks a lot. I hope you recuperate well from your injury and you bounce back to the normal soon. Yes, and I just want to say to all the people who are with us, thank you so much for staying. And मेरा हाथ अच्छा है, जिन्होंने भी क्वेश्चन लिखे थे, मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा था. My hand is good, and to all the fans, we'll come soon. We all work for you guys only. आज हम दोनों भी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही है कि आप तक सारी बातें पहुंच पाएं. So we'll come soon, and बहुत जल्द आप हमें देख पाएंगे, बहुत जल्दी. Thank you. Cool. Thanks a lot. Thank you, brother. Thank you.